Hi everyone, welcome back to Pupi Nursing Classes. Dear all, stay connected, subscribe and share the channel Pupi Nursing Classes. So in today class we are going to discuss about some new MCQs which are very important for the nursing exams. So without delay, let's start with the first question. The first question in front of you is, which is the largest muscle in the body? The options are deltoid, gluteus maximus, ventral, lateralis and trapezius. Image आपके सामने लगी है, which is the image of gluteus maximus and which is and the thigh region. So the right answer is gluteus maximus. Gluteus maximus जो है वो body का largest muscle रहता है. The next question, how many lobes are present in lungs? So when we discuss about the lung anatomy, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था. चलिए MCQ में भी डिस्कस कर लेते हैं. So अगर हम lungs के स्ट्रक्चर की बात करें, in right lung there are 3 lobes and in left lung there are 2 lobes. Right lung की जो lobe रहती हैं that is upper lobe, aperture and lower lobe, whereas the left lung upper lobe and lower लोब. यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, राइट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंफ्यूज नहीं होना है. राइट लंग में 3 लोब्स, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ग्लैंड इज नोन एज द लाइफ सेविंग ग्लैंड्स? सो व्हेन डिस्कस्ड वी डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम. जब हमारी एनाटॉमी की क्लासेस चल रही थी, हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था. उसकी पार्ट्स विच आर द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला, और उनके हॉर्मोन्स के बारे में भी डिस्कस्ड अबाउट. सो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे ही लाइफ सेविंग ग्लैंड और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, राइट. क्यों? बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स causes death within the 3 to 15 days, because ये ज़रूरी है बॉडी में होना. एंड the absence of adrenomedullary hormone drastically decreases the resistance to mental and physical stress. So अगर ये hormones नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होना है, आई थिंक दैट विल बी इम्पॉसिबल. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द लाइफ सेविंग ग्लैंड्स. Let's come to the next question. Which is the largest artery of the body? अब आर्टरी की अगर बात की जाए, arteries carries the oxygenated blood, ठीक है, usually, and veins carries the deoxygenated blood. So in the image you can see जो aorta है, this is the part aorta and this is the part of aorta. So aorta is called as the largest artery of the body, right? I think बहुत common question है and सभी को पता होगा. Which is the largest vein of the body? अब vein की बात की जाए, vein carries the deoxygenated blood, और deoxygenated blood जो है वो सारा राइट एट्रियम में सप्लाई होता है. राइट एट्रियम के बाद हार्ट जो है इसे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है लंग्स में भेजता है, और हार्ट में ही सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड प्योरीफाइड ब्लड जो है वो लंग्स से लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, राइट. सो इंफीरियर वेना केवा इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी. कॉमन क्वेश्चन है, याद रखने वाला है. Let's come to the next question. Human is the social animal who said this. Simply you have to remind कि ये statement जो है वो कौन से scientist ने दी थी. The answer is Aristotle. Aristotle has given the statement human is a social animal in the sociology, right? So जब हम sociology cover करेंगे हम सभी statements and जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में discuss करेंगे. Let's come to the next question. The respiratory center is stimulated by. अब respiratory center की अगर हम बात करें, first of all you should know about where is the respiratory center located. So in the brain stem, in the pons and medulla, the respiratory center is the location, ठीक है.
अगर यहाँ पे आप देखें ये डॉट्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपिनेस्टिक सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर एंड इंस्पिरेटरी सेंटर बताए गए हैं, राइट। सो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट कब होता है? इट इज़ बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे ऑप्शंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट द राइट आंसर यू हैव टू गिव इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्लियर? कोई भी क्वेरी किसी स्टूडेंट को रहेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is from the OBG. The part of fetus which occupies the lower pole of the uterus is called as. fetus का वो पार्ट जो मदर के लोअर पोल ऑफ द यूट्रस को ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर आई हैव रिटन, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंटेशन। एग्जाम्स में बहुत सारे कंफ्यूजिंग आंसर देखने मिलते हैं, लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें। सो यू हैव टू गिव द राइट आंसर, दैट इज द प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल के लिए इमेज आपके सामने लगी है, दिस इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी विच इज़ द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में उसका हेड जो है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी हम इसे कहते हैं, उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ रहता है, राइट। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रेजेंटेशन। वैसे तो अगर टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस की बात की जाए, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, बट इन दिस क्वेश्चन ओनली वी हैव टू लर्न इज कि बेबी के उस पार्ट को क्या कहेंगे हम जो मदर के लोअर पोल ऑफ द यूट्रस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंटेशन। क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट तो नहीं है ना? सो thank you all for watching the videos. You have to subscribe the channel, share the channel to the medical students. and आज के क्वेश्चंस का एक ब्रीफली लेते हैं। लार्जेस्ट मसल इज द ग्लूटियस मैक्सिमस। लंग्स में, राइट लंग में 3 लोब, लेफ्ट में 2 लोब रहती हैं। लाइफ सेविंग ग्लैंड हम एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी जो है रोटा है। लार्जेस्ट वेन जो है इंफीरियर वेना कीवा है। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, ये स्टेटमेंट जो है एरिस्टोटल ने दिया है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन द पोन्स एंड मेडुला, रेस्पिरेटरी सेंटर। एंड द पार्ट ऑफ fetus which occupies the lower pole of the uterus is called as the presentation. So thank you all for watching the videos. Meet you in the next video and live. Stay connected. Be happy.